Good evening, students. I hope you all are doing well. So, today we are going to discuss one more topic, that is fiction or novel. Fiction, either fiction or novel, it's one and the same thing. So, let us see what is fiction. Fiction refers to books or stories about imaginary people and events rather than books about real, right? So that is not real stories or event, that is just imagination. We can see that when author imagines something and write a novel or fiction, that that's a outcome of imagination, so that is called fiction. Immigrant tales have always been popular themes in fiction. Migration होता है जब when people come from here and there, and then they start living it there permanently, that is immigration, है ना. Migration, आपको पता है कि माइग्रेशन मतलब यहाँ से वहाँ अप्रवासी भारतीय, अब जो वहाँ जाके बस गए हैं ना, तो उसको कहते हैं हम उसको कहते हैं इमिग्रेशन. तो इमिग्रेशन टेल्स जो है वो बड़ा कॉमन टॉपिक है, कॉमन थीम है इसकी, किसकी, फिक्शन की. दैट्स अ वेरी कॉमन थीम ऑफ immigrant tales, right? So I think that is clear to you. And now that's a example. You can see very common example is Interpreter of Melodies by Jhumpa Lahiri, Native Speaker, right? Black Skin, Lucky by Jamaica Kincaid. सबसे अच्छा, the most important novel of immigrant tales is that is Things Fall Apart. बहुत ज़्यादा फेमस है Things Fall Apart, No Longer at Ease. ये बहुत ही, एंड एरो ऑफ गॉड, ये चिनुआ अजीबी करके एक ऑथर है, उसकी बुक्स है. आप अगर एग्जाम्पल्स दोगे तो आपको बहुत अच्छे से, आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे. तो इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि इमिग्रेंट टेल्स के एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप. थिंग्स फॉल अपार्ट, फिर नो लॉन्गर एट ईज एंड एरो ऑफ गॉड. ये किसके द्वारा लिखी गई, चिनुआ अचीबी के द्वारा लिखी गई बुक है. Another example is Interpreter of Melodies, very famous novel written by Jhumpa Lahiri, right? So these examples you can quote. The more examples, the more what we can say, experiences or something, references you give, the more clear idea you are making, and this way you will speak good marks, or you can score good numbers, right? So please give a lot of examples. Walter Scott was an almost exclusively historical novelist, right? So he was historical novelist, and that is something who has given along with imagination. Now synonyms of fiction is tale, story, novel, legend, etc., right? Now what are the themes? So themes are the theme of a story. Fiction, what's the theme of fiction? So the theme of fiction is the underlying message or concept that the author is trying to convey to the reader, right? Suppose if you write poem or something, so through your imagination, if you have written something, one novel, and then you want to convey the message through your writing, so that is called that is something which is called theme. And the theme of a story is generally an opinion of the author wants to convey through their storytelling, right? So that is more or less what is this. That's a theme, is that when you want to convey something through one imaginary story, that can be the theme of fiction, right? Fiction versus non-fiction. अगर फिक्शन है तो नॉन फिक्शन भी है. नॉन फिक्शन मीन्स नॉट फिक्शियस, है ना, मीन्स रियल. देखते हैं क्या है. फिक्शन एंड नॉन फिक्शन आर द टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ प्रोज that serve different purposes and employ different narrative techniques. Very important.
Fiction and non-fiction are the two distinct categories of prose. प्रोज की दो कैटेगरीज है, एक होता है पोएम, पोएटिक फॉर्म में लिखना, एक होता है प्रोज जो डायरेक्ट होता है ना, स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोज विच इज़ रिटन इन स्टेटमेंट फॉर्म. तो ये इसकी दो कैटेगरीज है, इधर इट कैन बी फिक्शन और नॉन फिक्शन, है ना. दैट सर्व डिफरेंट पर्पसेस. फिक्शन है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा कुछ उसमें रियल नहीं है, लेकिन वो भी यूज़फुल होता है. लेकिन जैसे तस्लीम नसरीना की नावल है लज्जा, तो वो क्या है, रियलिटी बेस है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पर लिखी गई बुक है, तो दैट इज़ फिक्शन, दैट इज़ नॉन फिक्शन, राइट. तो prose, there are two types of prose. One is fiction and another one is non-fiction that serve different purposes and employ different narrative techniques. और दोनों की narrative techniques भी अलग होती है, fiction की और non-fiction की. ये basic difference है. Fiction refers to literature that is not grounded in real life events, but is made up of or created from a writer's imagination. That is just a writer's imagination which is not real, not grounded in real लाइफ इवेंट्स, जो सच में नहीं होता लेकिन वो उसका इमेजिनेशन है, उस फॉर्म में लिखा गया प्रोज इज कॉल्ड फिक्शन. नॉन फिक्शन रेफर्स टू factual stories based on real people, right? Real people, real information or real event. What is this? Real people will be there. Talwar movie is based on Arishi's murder, right? Murder case. So that is somewhat the Talwar what we can say couple, husband wife, so that is also somewhat real. And then information is real and event is real. So I gave you two example of fiction like Lajja by Taslima Nasreen and Talwar is the movie is also comes under fiction, right? So that is fiction. Now sorry, that is non-fiction, I'm very sorry. Talwar and another I gave example, Lajja is non-fiction, and fiction, that's just imagination. Okay, now what is fiction? Fiction is a literary genre that encompasses imaginative storytelling. जो क्या करता है fiction? इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग, वो इमेजिनेशन है, उसकी स्टोरी जो होती है वो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स. तो अब उसमें क्या क्या करना है, उसको कैरेक्टर्स को भी क्रिएट करना है, सेटिंग्स, events and narratives that do not exist in real world. So that's a whole responsibility of the writer. For fiction writer has to take responsibility to create characters, settings, events and narratives, right? And then he makes, these are the raw material we can say, and by which he creates or he makes one story that is called fiction. Okay, in fiction authors use their creativity to write stories, and obviously in fiction author use very good creativity. How much creative you can be, because again I'm telling you that you have to imagine about characters and then their relationship, then you have to create plot, then dialogues you have to write, narratives, right? You have to talk about incidents and story as setting, you have to think about it, right? So that are often for the purpose of entertainment. Why fictions or writing is written? So that is entertainment, exploring themes or artistic expression. Writing is an artistic expression. So these are the purposes. Beneath the umbrella of fiction are many sub-genres including mystery, romance, fantasy, magical realism, thriller, science fiction, crime and horror, right? So you should, again and again I'm telling you that the more examples, the more references if you give,
definitely you will be you can secure good marks. So that is why please always just have to think about the you should remember more and more examples. So let us see what is wait a minute. Yes, so that is beneath the umbrella of fiction are many subgenres, including mystery, romance, fantasy, and then magical realism. Magical realism is pertaining in a meticulously realistic style of imaginary, right? That is realistic style of imaginary or fantastic scenes or images, right? A literary genre or style associated specially with Latin America that incorporates fantastic or mythical elements into otherwise realistic fiction. Realistic fiction means fiction which comes from real situation, that is realistic fiction, and that comes under magical realism. Realistic, but something magic in the form of magic. This way you can remember. So these are the thriller, scientific fiction, crime, horror comes under this umbrella of fiction. Some fictional works combine multiple subgenre, fusing elements of various categories to create a hybrid story. Hybrid means mixed story, such as Mary Shelley's Frankenstein. आपके कोर्स में भी है वो. तो क्या है वो? साइंस फिक्शन एंड हॉरर. उसमें साइंस फिक्शन भी है, उसमें हॉरर भी है. सो दैट इज द blend. That's a blending of different genres, right? And another is or Stephen Meyer's to Twilight series paranormal romance. Paranormal is mysterious, mythical, which cannot be proved or disproved by science, is called paranormal, right? Okay. Now what is non-fiction? If fiction is there, then you should discuss about non-fiction. However, not in this way what I have given you notes. So you just read it, but yes, very little reference you should give if you are discussing now fiction. So you should discuss non-fiction. So just listen, and one paragraph or 2-3 lines, 5 lines, 10 lines can be given as a reference. If fiction is this, so what is non-fiction? So okay, let us see. Non-fiction by contrast refers to factual stories about real people. Non-fiction is real people, real places or event. I gave you example of Lajja, and another example is Talwar, and others, so many examples. In works of non-fiction, authors relay accurate, verifiable information. These insights, experiences, and explanations are grounded in reality and are used to educate, persuade, or document true events and other occurrences, right? So many accidents, events take place in our surrounding, right? And when you take the same story and then write something, a message through which you want to convey a message to the society, that is called non-fiction based on reality. The word non-fiction essentially means not fiction or not false. By definition, then, non-fiction implies a certain level of truth, that is रियल और ट्रूथ. ऐसी स्टोरी जो रियलिटी में लिखी गई है, जो सच में हुआ है, और ऑथेंटिसिटी है ना. जैसे तलवार, आरुषि तलवार का मर्डर. दिस टिपिकली generally results in people holding non-fiction to a higher standard than fiction. This typically generally results in people holding non-fiction to higher standard than fiction. Naturally, fiction और non-fiction दोनों ही अपनी जगह में both are important, both have
their own significance. But then why non-fiction is more important? Because that's a real story, but then you have to take facts here. You cannot play with the character, events and everything, plotline, each and everything you have to be very much sure. लोगों ने महाभारत और रामायण और छोटे छोटे इसके फेबल्स या छोटी छोटी स्टोरीज जब हम बनाते हैं, I would like to share you one of my friends. She has written on Mahabharat's character Madhvi. So I was not aware that a little 2-3 lines I just as a reference I knew, but then I said so that's a great character of Mahabharata. So when she had written, then she said she shared that I had to study for 1 year. I studied, then I was in situation to write about this character. So that is non-fiction. That is real, where you have to know facts very clearly, right? A few facts thrown into a work of fiction do not make it true. क्या आपने थोड़ा कुछ बता दिया, इतने इश्यूज होते हैं पद्मावती और इस मूवी, कहते हैं कि आपने सच्चाई से छेड़छाड़ की है, आपने उसके फैक्ट से छेड़छाड़ किया है, तो उसमें ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऑथर्स इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल व्हेन ही राइट नॉन फिक्शन, बिकॉज you cannot do anything by your own. You cannot put any statement by your own. You have to be very much authentic for each and every statement, है ना. Where as a few fabrications in a work of non-fiction will completely obliterate its credibility. आपका अगर आपने कुछ नॉन फिक्शन में ज़रा सा भी अगर आपने मन से डाल दिया और कुछ और कैरेक्टर बताने लगे, तो ये अपने आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देता है. तो दैट इज़ वाई नॉन फिक्शन राइटिंग इज़ मोर टफ दैन fiction. As the broadcast category of writing, non-fiction can encompass works in many different categories such as business. Non-fiction हम लोग रियल स्टोरी, जैसे एक वीडियो कॉन की सीईओ थी चंदा कोचर, तो उनके साथ जो भी आप पढ़ लेना, मैं आपको एज अ रेफरेंस बता रही, तो उनकी स्टोरी पे भी लोगों ने बहुत सारी स्टोरी लिखी. जो भी था, शी डिड समथिंग रॉन्ग, व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, बट दैट्स अ बिजनेस पर्पस कि भाई अगर आप इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है और आप इतनी अच्छी हायर पोस्ट पे है, इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, दैन दैट सच काइंड ऑफ रिपरकेशंस आर गोइंग टू बी डन, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. तो मैंने आपको रेफरेंस दिया, चंदा कोचर का एग्जाम्पल दिया, शी वॉज द CEO ऑफ वीडियोकॉन. तो आप इस तरह के बिजनेस पर्पस पे जो नॉन फिक्शन लिखे जाते हैं, फिर कुकिंग पे नॉन फिक्शन होते हैं, ट्रैवल होता है, बायोग्राफी होती है, रिलीजन होता है, आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेजेस, पेट, क्राफ्ट्स एंड हेल्थ एंड fitness. These are the example of non-fiction. Non-fiction can take on various forms including essays. भाई नॉन फिक्शन में आप essays लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, मेमोयर्स लिख सकते हो किसी की मेमोरी में, साइंटिफिक पेपर्स लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक्स, ट्रैवलॉग एंड मोर. So that is just for your understanding. I have spoken on non-fiction, but in exam you just give a little information about non-fiction, though you are discussing about fiction, but then you should give a little reference of non-fiction as well, right? Okay, moving to next slide. That is non-fiction versus creative fiction, creative non-fiction. So that's a non-fiction, that is again, that's your wish. You would if you have time, just write something about creative non-fiction also, but for your information I have just written here and I'm trying to give you a little notes, right? To further complicate matters, writers also categorize some non-fiction writers as creative non-fiction. आपने एज इट इज़ उठा के वही स्टोरी वैसा का वैसा रख दिया, पर उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें कुछ व्हाट वी कैन से दैट सस्पेंस नहीं है, तो रीडर्स को शायद पढ़ने में बहुत मज़ा नहीं आए. तो वो भी एक क्रिएटिविटी है, दो इट्स नॉन फिक्शन, बट हाउ वुड यू
present it, right? So that is your creativity. And creative non-fiction can also be called literary non-fiction. याद रखना, creative non-fiction is also known as literary non-fiction or narrative non-fiction. So creative non-fiction or literary non-fiction or narrative non-fiction is the same. The classic book In Cold Blood is an example of creative non-fiction, while much of the books is rooted in fact. Capote employs literary devices आपको पता है बहुत सारे literary devices हैं for simile metaphors, ये सब figures of speech और बहुत सारे जैसे what we can say that prologue, monologue, soliloquy, these are the literary devices such as voice, राइजिंग एक्शन, डिनाउमेंट है ना. डिनाउमेंट इज कंक्लूजन, कि आपने बहुत सेफली कैसे किसी चीज़ को सारा जो क्या बोलना चाहिए द्वंद्व है या किसी के मन में कुछ चल रहा है, फाइनली इट्स ऑल आफ्टर डिलेमा यू हैव कंक्लूडेड, सेफली कंक्लूडेड, दैट इज कॉल्ड डिनाउमेंट, राइट. एंड इमेजिनरी टू इवोक एम्पैथी इन द रीडर. तो जैसे आपने बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया, कुछ और आपको लग रहा था और फिर कुछ और, जैसे हमने अभी सेकेंड ईयर में पढ़ा कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो उसका हीरो है, तो वो हीरो कौन है? हीरो सिडनी कार्टर निकलता है लास्ट में, है ना. तो चार्ल्स की जगह जो है वो कौन है? हम शुरू से समझ रहे हैं कि चार्ल्स इसका वो है, हीरो है, लेकिन चार्ल्स हीरो नहीं होकर चार्ल्स एवरमोंड, है ना, तो अपना नाम बदल लेता है. तो चार्ल्स हीरो नहीं होके लास्ट में कौन हीरो है? लोगों को सिंपैथी किससे सबसे ज़्यादा है? तो सिडनी कार्टन से. क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ लूसी के लिए सेक्रीफाइस कर देता है. तो ये ऐसी क्रिएटिव, वो तो फिक्शन है, लेकिन नॉन फिक्शन अगर है तब भी आप रियलिटी है तो रियलिटी को एज इट इज़ मत सर्व करो. उसको आप अगर स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो तो दैन दैट्स अ क्रिएटिव नॉन फिक्शन. की नॉन फिक्शन है बट आप कितनी क्रिएटिविटी उसमें, इमेजिनरी आपके कितने सारे टूल्स यू कैन यूज, राइट. दैट इज इन एसेंस फाइनली the primary distinction between non-fiction and creative non-fiction is the way they present information. वही हमने बात की, the same we had discussed, that's the way you present something, that is the creativity. Non-fiction aims to inform and educate in an objective manner, while creative non-fiction combines the factual with the creative यूजिंग लिटरेरी डिवाइसेस. आप बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करके कुछ उसमें स्पाइसेस डाल के कह सकते हैं हम, टू एंगेज रीडर्स ऑन एन इमोशनल एंड नरेटिव लेवल जस्ट लाइक अ नॉवल. कि नॉवल में वो इमेजिन कर रही है, आपको बहुत सारे हम टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन फिक्शन में हम रियल बताते हैं, लेकिन उस रियलिटी को भी आप कितने ब्यूटीफुली, कितना आर्टिस्टिकली आप उसको प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ क्रिएटिव नॉन फिक्शन. नाउ कम टू द फिक्शन अगैन. एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्शन. So what are the categories of fiction? Short story, novel, play, literary fiction, fable, fairy tales and folklore, and genre fiction. First short story, A Perfect Day for Banana Fish by J.D. Salinger. Again I'm telling you that please remember some of the examples. The more you give examples, the better you attempt the paper and you secure good marks, right. So that's a short story, A Perfect Day for Banana Fish. J.D. Salinger का शॉर्ट स्टोरी है, आप इसको रिमेंबर कर लो. चाहो तो आप नेट में जाके विजिट कर लो और छोटा सा उसका रिव्यू भी देख सकते हैं ना. टू किल अ मॉकिंग बर्ड बहुत फेमस है, ये हार्पर ली का, ये आप जाके देख लो, ये नॉवल है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली. प्ले है हैमलेट, बहुत फेमस है, बाय विलियम शेक्सपियर. फिर लिटरेरी फिक्शन यूलिसेस बाय जेम्स जॉयस, वेरी वेरी फेमस है ये इसका यूलिसेस. फिर फेबल, फेरी टेल्स एंड फोकलोर, स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्स, ये भी बहुत ज़्यादा, सेवन डॉर्स बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी, स्नो वाइट एंड द सेवन
ड्वार्फ्स, राइट। फिर जॉनर फिक्शन द गिफ्ट बाय डेनियल स्टील, तो आप इसमें से कम एक शॉर्ट स्टोरी द परफेक्ट डे फॉर बनाना फिश बाय J.D. सेलिंगर, फेमस ऑथर है। फिर नंबर टू ये वाला जो है नॉवल टू किल मॉकिंग बर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, हार्पर ली का, इतना भी लिख दोगे। और प्ले में ये हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, और लिटरेरी फिक्शन यूलिसेस बाय जेम्स जॉयस, राइट, दैट इज इनफ। नाउ नॉन फिक्शन, अगैन आई एम टेलिंग यू दैट एज अ रेफरेंस यू कैन गिव, बट येस नॉन फिक्शन में मेमोयर आता है, ऐसे आता है, बायोग्राफी आती है, ऑटोबायोग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, एंड फीचर राइटिंग आता है, ठीक है। तो अब इसमें हंगर बाय रॉक्सन गे, तो ये आप मेमोयर लर्न कर सकते हैं। फिर ऐसे स्लाउचिंग टूवर्ड्स बेथलहम बाय जॉन डिडियन, इसको लर्न कर लेना। बायोग्राफी अनब्रोकन बाय लॉरा हिलेनब्रैंड, राइट। ऑटोग्राफी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक बाय एनी फ्रैंक, राइट, तो ये कर सकते हैं आप। सेपियंस बाय युवल नो हरारी, आप इसमें से जो रिमेंबर कर सकते हैं कर लेना, एक आधी एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। चलिए, वॉट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपको लिखना ही है। बीनीथ द अम्ब्रेला ऑफ फिक्शन आर मैनी सब जॉनरे इंक्लूडिंग mystery, romance, fantasy, magical realism, thriller, scientific fiction, crime and horror. I could not associate example, that is my request you to please, otherwise I am going to tell in next if possible that in next video, but yes, you just remember one or two examples, please take out from net, है ना, examples of all mystery, romance, fantasy and all, right. Okay, what are different kinds of non-fiction, I'm not reading, that is already discussed. Main types of fiction, that is very important, types of fiction, that's a fiction and types of fiction. So you just jump from first slide to this slide also if you have less time, right. Now what are the major types of fiction? If you start really wide, almost all traditional literature falls into two categories, right. First is commercial fiction, literary fiction. देखो commercial fiction क्या है? Commercial fiction features a story with a straightforward plot line. Straightforward ना, commercial है, नाम से पता चल रहा है, usually set in modern times, often featuring action and adventure, scientific fiction, crime, suspense, right, westerns, war, magical realism, satire, humor, romance or supernatural themes. Commercial fiction has broad appeal to variety of audiences and is generally meant for entertainment than for art, and most stories are heavily plot driven. Example including thrillers like जेम्स बॉन्ड नॉवल, राइट, जेम्स बॉन्ड नॉवल आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। मिस्ट्री लाइक अगाथा क्रिस्टीज Poirot stories, right, and romances like Daniel Steele's books and John Graham's thrillers, right. Now literary fiction is commercial, is directly you can say that commercial is written for different purposes, पर मेनली इसमें यह है एंटरटेनमेंट है, ज़्यादा उसको आर्टिस्टिक और सिक फॉर आर्ट और एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाए कमर्शियल फिक्शंस लिखे जाते हैं, जो कमर्शियल मूवीज़ के लिए, जिससे पैसा आता हो, जिससे आप कुछ गेन करते हो, नेम फेम गेन करते हो, मनी गेन करते हो, तो वो कमर्शियल फिक्शन या कमर्शियल मूवीज़ जिससे पैसा का बनाने का, पैसा करने, कश्मीर फाइल्स है, ये भी क्या है, इसमें कितना करोड़ों रुपए कमाते हैं ये लोग, तो दैट इज़ कमर्शियल फिक्शन या कमर्शियल मूवीज़, है ना। लिटरेरी फिक्शन इज़ डिफाइंड बाय इट्स लिटरेरी क्वालिटी रादर देन कमर्शियल सक्सेस। अब इसमें ये इनको पैसा नहीं कमाना है, इनको कितना आर्टिस्टिक बनाना है, वो लिटरेरी फिक्शन है। लिटरेरी फिक्शन एक्सप्लोर्स डीपर इशूज थ्रू कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड देन थीम, सिम्बॉलिज्म, मेटाफर, एलेगरी, आयरनी, एम्बिग्विटी, वो बहुत ध्यान रखते हैं कि इसका कहीं दूसरा मीनिंग तो नहीं निकलेगा, इसमें एम्बिग्विटी तो नहीं आ रही है, इसमें एलेगरी प्रॉपर डालना है, इसमें मेटाफर ठीक से नहीं, सिम्बल्स ठीक से डालना है। तो वो पूरा क्यों? बिकॉज दे थिंक फॉर इन लाइक दे थिंक
दैट्स उस फ्रंट पे सोचते हैं कि दे थिंक फॉर आर्टिस्टिक क्रिएशन, कि वो एक आर्टिस्टिक क्रिएशन हो, उसमें उनको पैसा नहीं कमाना है, पर वो कितनी आर्टिस्टिक बन सकती है ना। तो ये जो है सत्य की फिल्म्स हैं, आर्ट मूवीज़ हैं, ये सारे लिटरेरी फिक्शन में आती है। दिस टाइप ऑफ फिक्शन इज टिपिकली कंसीडर्ड हाईब्रो। हाईब्रो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो फिक्शन होते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट फ्रॉम द ऑडियंस। देखो आपको इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझना चाहिए कि अगर हम कहीं एक शॉप में जाते हैं और हम देखते हैं कि फ़ैशन क्या है, और आप फैशनेबल क्लोथ्स लेते हैं, अटायर लेते हैं, तो आप बस आप ये देखते हो कि आपको वो कैसा भी हो वो उसमें, फिर आप वो नहीं देखते कि इसका फैब्रिक कैसा है, या ये कितना कटा है, या ये कैसा है, या आपको अच्छा लग रहा है आपने ले लिया। दैट इज़ समवॉट कमर्शियल पर्पस, कि भाई आप अच्छे दिखना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम देखते हैं खादी और खादी की साड़ियाँ और खादी के कपड़े, खादी के सूट्स जो भी है, वो अटायर में या इंडियन अटायर में, और आप बिल्कुल फैब्रिक देख रहे हो कि प्योर कॉटन है, ये है, तो वो डिफरेंस समझ रहे हो, दो माइंडसेट का डिफरेंस है। एक डिफरेंस है जहाँ आप इंडियननेस लाना चाहते हो, जहाँ पर आपको आप कैसे दिख रहे हो उससे बहुत मतलब नहीं, लेकिन आपको प्योर कॉटन ही पहनना है, डल फिनिशिंग में ही चाहिए, आपको प्योर चाहिए, आपको डल कलर चाहिए, आप बहुत आप कैसा उसके लुक्स पे नहीं, आप उसका फैब्रिक और आपकी डिग्निटी को जब फोकस कर। तो ये डिफरेंस है दो माइंडसेट का। और कमर्शियल में आप कहते हैं फैशन के नाम पे कुछ भी करेगा, उस तरह का जो डिफरेंस है। अमंग दीज टाइप्स ऑफ स्टोरीज, किसमें, लिटरेरी फिक्शन में, अमंग दीज टाइप्स ऑफ स्टोरीज मेन स्ट्रीम fiction describes plot that involve what most people in the mainstream deal with daily, and that features a reality family to जनरल पब्लिक, राइट। तो इस टाइप की स्टोरीज़ में मेन उसमें क्या होता है, ये डिस्क्राइब प्लॉट्स, ऐसे प्लॉट होते हैं जो कि जनरली किसको इन्वॉल्व करते हैं, मेन स्ट्रीम डील, कि अभी क्या चल रहा है, अभी एडवांस सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसको मेन स्ट्रीम कह सकते हैं, विथ डेली, और डेली में क्या चल रहा है, दैट फीचर्स आर रियलिटी फेमिलियर टू द जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक को क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग जब लिखते हैं या बनाते हैं, राइट। तो दैट इज इट। नाउ ये हो गया। उसके बाद 5 टाइप्स ऑफ फिक्शन जॉनर्स, ये हम कर चुके हैं। देर आर 5 जनरल जॉनर्स ऑफ फिक्शन इन क्रिएटिव राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, इंक्लूडिंग मिस्ट्री, थ्रिलर, साइंटिफिक फिक्शन, साईफाई। जितने भी H.G. वेल्स बहुत फेमस ऑथर था साईफाई के लिए, इनविजिबल इंडिया बोल रही थी मैं, इनविजिबल नाम भूल रही हूँ। इस तरह के जितने भी फिक्शन हैं वो सारे इसमें आते हैं ना। फैंटेसी में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्राई द पीकॉक, और पता नहीं बहुत सारे, सो मैनी, जितने भी इसमें इमेजिनेशन जहाँ पर है, तो रॉबिन्सन क्रूसो, ये सारे, राइट। बट among those overarching categories देर आर डजन्स ऑफ पॉपुलर सब जॉनर्स, है ना। और बहुत सारे सब जॉनरे उसके हैं फिक्शन के, जो अदर इसके अलावा भी हैं, जो अभी स्टोरीज आ गई, पॉकेट मूवीज़ आ गई, कौन सी मूवी है, नाइफ मूवीज़ आ गई, शॉर्ट मूवीज़ आ गई, इस तरह के बहुत सारे। वो कह रहे हैं कि डजन्स ऑफ पॉपुलर सब जॉनरे आर देयर। All types of fiction genre. Below is a list of some of the most popular fiction genre today, but this list is not exhaustive, as I mentioned at the beginning of this blog. Writers bend genre rules all the time, and you should be no different. Don't be afraid to mix. Okay, fine. Mystery. The mystery genre includes general mystery, noir mystery, historical mystery, police procedural, and
पैरानॉर्मल मिस्ट्री। अब मिस्ट्री में क्या आ गया, तो मिस्ट्री में आपके जनरल मिस्ट्री की भाई आज तक ये समझ, आज तक वाकई में मिस्ट्री अगर आप कहो तो तलवार मूवीज़ में आज तलवार आरुषि मर्डर, किसने उसका मर्डर किया आज तक इट्स नॉट वेरी मच क्लियर, तो एक मिस्ट्री बन के रह गई है ना, तो वो भी इसमें आता है मिस्ट्री में। फिर नॉयर मिस्ट्री, हिस्टोरिकल मिस्ट्री, बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसे कई कैरेक्टर्स, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आज तक बहुत ठीक से उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया, उसका रहस्य नहीं पता चला, तो उनको हिस्टोरिकल मिस्ट्री कहते हैं। फिर पुलिस प्रोसीजर है ना, कई बार वो भी अपने पुलिस प्रोसीजर है, तो वो भी मिस्ट्री में क्यों आता है, क्योंकि उनका मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं कि कैसे पता चल गया या कैसे ये कंक्लूड हो गई, ये चीज़ सामने आ गई, तो वो इस तरह के सीआईडी है, आप देखते होंगे टीवी का फेमस सीरियल था सीआईडी, वो इसमें आता है मिस्ट्री में, और वो पुलिस प्रोसीजरल में ही है। पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज़ है ना, तो जैसे अचानक आप कुछ और सोच रहे हो और आपको पता चल रहा है कि नहीं उसका रियल ब्रदर ही उसका मर्डरर है, तो उसको पैरानॉर्मल मिस्ट्री कहते हैं। जहाँ पे, या फिर अपने हैमलेट है, तो हैमलेट उसके मन में क्या चल रहा है, एंड देन टू बी एंड नॉट टू बी फेमस सॉलिलॉकी, जिसमें वो कहता है, स्टेज में आता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो जो डिलेमा है उसका बेविल्डरमेंट, जहाँ वो ही इज़ नॉट एबल टू टेक डिसीजन, दैट डिलेमा इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड पैरानॉर्मल मिस्ट्री, जहाँ पे वो फिर अचानक से कंक्लूजन लेता है, वो सोचता है, डिसीजन में आता है, तो दैट लास्ट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डिलेमा, दैट इज़ पैरानॉर्मल मिस्ट्री। फिर थ्रिलर जॉनरे इंक्लूड्स सब सुपरानैचुरल थ्रिलर। कौन सा, राजस्थान में एक प्लेस है, मैं बिल्कुल भूल रही हूँ अभी, देखो कौन सा फोर्ट है, आप लोगों को पता होगा, मैं अभी बिल्कुल भूल रही हूँ, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊँगी। वो फोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ने ही रिस्ट्रिक्ट, अरे आप इंदौर में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे पाताल पानी, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिखा है मौत का कुआं, और कितनी ट्रेजेडीज़ हुई है वहाँ, नोट डाउन है, लोग लिख के रखते हैं अभी ये बारिश के टाइम में कि आप कभी मत जाइए, आप वहाँ पत्थर में सूखे ड्राई प्लेस में फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और अचानक से यू वर सराउंडेड बाय वाटर। ऐसे कितने केसेस हुए हैं वहाँ पे, पता नहीं अचानक पानी कहाँ से आ जाता है और एकदम फ्लो में आता है। तो इस तरह के जो वो हैं उसको उसमें कहते हैं लोग कि कोई आत्मा आती है, ये आती है, इसलिए, तो वो सुपरानैचुरल थ्रिलर में आता है। वो हिस्टोरिकल थ्रिलर्स भी होते हैं, वहाँ पे पता नहीं कौन था, कहते हैं मौत का कुआं, तो ये जो घर है ये घोस्ट हाउस है, ये इस तरह की जो स्टोरीज बनती हैं। एनवायरमेंटल थ्रिलर है ना, मेडिकल थ्रिलर, रात को यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, वो लीगल थ्रिलर, लीगल भी होते हैं, लीगल भी थ्रिलर स्टोरीज होती हैं। पॉलिटिकल थ्रिलर है ना, अभी पॉलिटिक्स आज ही रिजल्ट आया है, तो पॉलिटिकल थ्रिलर, तो उसमें कैसे कैसे उनके प्रमोद महाजन की जब का मर्डर हुआ, तो इस तरह की कैसे हुआ, क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें। मिलिट्री थ्रिलर ये है, तो एस्पियोनेज स्टोरीज कम अंडर दिस कैटेगरी, राइट। साइंटिफिक फिक्शन, मैंने आपको बताया साइंटिफिक फिक्शन स्टोरीज अकर इन द फ्यूचर और द पास्ट, या तो वो प्रेजेंट में नहीं रहती, या तो वो फ्यूचर की बात बताएंगे या पास्ट की बताएंगे, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज इन डिफरेंट डायमेंशन दैन द प्रेजेंट। इट फीचर्स न्यू इमेजिन्ड रियलिटीज़, वो क्या करते हैं, नई एक इमेजिन रियलिटी होता है उसमें, रियल भी होता है, एंड यूनिवर्सेस, एंड द सेटिंग इज इंटीग्रल, और उसका सेटिंग इंटीग्रल होता है। हाईटेक इज ऑल्सो फीचर्ड prominently in the story, space opera, romantic science fiction, military science fiction, रोमांटिक भी होती है, मिलिट्री साइंस फिक्शन भी होती है, कुछ थोड़ा फैक्ट्स है और कुछ फिक्शन है, ऐसा कुछ इमेजिनेशन होता है। राइट ब्रदर्स ने कहते हैं 68 ईयर्स बैक ये इमेजिनेशन किया था कि भाई ऐसा एक फ़्लाइट या एयरशिप बनेगी, और फिर उसके बाद उस बेसिस पे ही वो बन गई। तो कई लोग देखा होगा आपने, मर्डर करते हैं, ये करते हैं, तो वो इमेजिनेशन होता है उसको रियल कर देते हैं, वो उससे आइडिया लेके मर्डर करते हैं या उससे आइडिया लेके प्लॉट बनाते हैं, इस तरह का है ना। ऑल्टरनेट हिस्ट्री एंड डिस्टोपियन
एंड यूटोपियन स्टोरीज, आपको पता है डिस्टोपियन यूटोपियन, यूटोपियन इज एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, राइट, इट्स अ वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी व्हाट वी कैन से दैट्स अ स्टैंडर्ड सिचुएशन जहाँ सब कुछ एकदम बढ़िया है, तो वो यूटोपियन स्टोरीज हो गई। ऐसा भी वो भी इमेजिनेशन ही है। और डिस्टोपियन जहाँ सब कुछ डिस्टर्ब्ड है, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब, तो दैट्स अ डिस्टोपियन स्टोरी। एंड that's a steampunk are all considered a subgenre of scientific fiction. Romance follows the romantic relationship between at least two people marked by tension and desire। तो भाई उसके बीच में टेंशन होगा, कोई डिज़ायर होगी, फिल नहीं हुई, वहीं से तो स्टोरी बनेगी, तो वो रोमांस बेस में आता है। तो रोमांस जॉनर इंक्लूड्स पैरानॉर्मल रोमांस, पैरानॉर्मल, नॉर्मल रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्टोरी में कोई थ्रिलिंग नहीं होगी, तो पैरानॉर्मल जिसमें कोई मिस्ट्री होगी, जिसमें कोई डिलेमा होगी, कंफ्यूजन होगा, और फिर कंटेम्प्ररी रोमांस, हिस्टोरिकल कंटेम्प्ररी रोमांस अभी जो प्रेजेंट टाइम में रहता है वो, फिर हिस्टोरिकल रोमांस, वेस्टर्न रोमांस, गोथिक डराने वाला, टेरिफिक रोमांस, राइट, रीजेंसी रोमांस एंड रोमांटिक सस्पेंस, ये इसके एग्जाम्पल है। फैंटेसी स्टोरीज सेंटर ऑन मिथिकल किंगडम्स एंड मैजिक। द फैंटेसी फिक्शन genre includes contemporary fantasy, traditional fantasy, horror, weird fiction, epic fantasy, historical fantasy, dark fantasy जिसमें बहुत ही बुरा कंक्लूजन है, मर्डर सब मर जाए, अर्बन फैंटेसी, राइट, एंड कॉमिक फैंटेसी जो शहरों की कहानियाँ हैं, कितनी रोज़ होती रहती है, इस पे बेसिस पे मूवीज़ भी बनती है कि एक लड़की आती है, रहती है, फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे याद है हमारे एक रिलेटिव वाया किसी के, तो उनके 3 लोगों की एक साथ डेथ हुई थी, मतलब नानी की, डॉटर की एंड उनकी डॉटर की, तो दैट इज द 3 जनरेशंस डाइड टुगेदर दिस वे, राइट। फाइनली क्या है फिक्शन? फिक्शन कैन बी रिटन और टोल्ड और एक्टेड ऑन स्टेज, इन अ मूवी और ऑन टेलीविजन और रेडियो। बहुत वास्ट है इसका फिक्शन का आइडिया। फिक्शन जो लिखा जाता है, जो बोला जाता है, जिसकी एक्टिंग, आप इतने सारे सीरियल देखते हो टीवी में, मूवीज़ होती है, टेलीविजन, रेडियो, कुछ में भी फिक्शन होता है। यूजुअली द पर्पस ऑफ फिक्शन इज़ टू एंटरटेन, फाइनली हम एंटरटेन करते हैं। हाउएवर द डिवाइडिंग लाइन इज़ नॉट ऑलवेज टू क्लियर, लेकिन फिक्शन और नॉन फिक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर डिवीजन नहीं है। फिक्शन विद रियल पीपल और इवेंट्स इन इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल फिक्शन, है ना, जो उसमें सच में पद्मावती, ऐसे कई सारे महाभारत और रामायण, बाइबल के इतने सारे कैरेक्टर्स, कुछ भी सब, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन थिंग्स दैट हैपन इन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में हुई है। तो ये है आपकी क्वेरीज आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आई वुड लाइक टू लिसन यू। माई नंबर इज़ 9425349521, सो प्लीज़ लीव योर क्वेरी to my WhatsApp. Apart from this, one thing, I have written some stories, so you can visit on it, right? That is Sajraj Ki Awaaz. That's my Hindi YouTube channel in which you can visit and listen different kind of story. These are almost all are fiction, right? 1 to 2 minute story. So thank you so much. All the best. God bless you.